जैसे अगर फिजिकली हमारी तबीयत खराब होती है, चाहे कुछ भी हो, तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचते हैं एक भी बार अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अगर इमोशनल लेवल पे कुछ गड़बड़ है, तो हम क्यों इतना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। चलो अगर लोग कहते भी है तो कहने दो ना। हेलो गाइस, सो आज एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करनी है, विच इज डिप्रेशन। वेल, just yesterday, Sushant Singh Rajput, the Bollywood actor, committed suicide because of depression. At least that's what the news people are saying. And it's a very, very serious problem. You know, every year around 8 lakh people are committing suicide. That means one in every 40 seconds is taking their own life due to some or the other kind of misery that is happening within them. And that is something that needs to be addressed. And you know, इसके बहुत सारे dimensions हैं, लेकिन आज हम इसका जो एक practical aspect है, एक practical side है कि हम practically क्या steps ले सकते हैं so that हम depression के trap में ना आए, और अगर आए हैं तो खुद के मदद से खुद के समझ से बाहर जा पाए। सो कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्टेप्स है जो मैंने कल बैठे बैठे जस्ट सोचा कि क्या कर सकते हैं इसमें। द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू हैव अ हेल्दी बॉडी, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ हेल्दी बॉडी यू विल नॉट हैव अ हेल्दी माइंड। Now that does not mean कि every healthy person in the world will be free from depression and any kind of stress or anxiety. No, but if you are healthy, at least body के level से जो depression के chances है, like feeling sluggish and feeling low on energy, and like these are the things which amplifies the negative things which are happening in your mind. So the first thing you can do is work on your body. Keep your body healthy, because this is the instrument we have in this lifetime to experience life. Okay, so now let's make sure that the experience of our life through this body is in the best possible way. So a healthy body is the foundation for a healthy mind. And second point is to work on your mind. What does work on your mind mean? Depression या stress या anxiety या जो भी ऐसे इमोशंस है, जो भी ऐसे कंडीशंस है जो which you know puts us down, they happen mostly in our minds with our emotions. And usually अगर एकदम उसको बेसिक पे लाके देखे तो when something that we don't like or something does not happen according to what we want, be it failing in the exams or financial mess or relationship situation or whatever your reason is, and that is why the conflict happens here कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. This is the root cause of anything negative that happens here. So what do I mean by working on your mind? It's just to raise your awareness up to a point where you can see this one fact कि ये जो भी बाहर की दुनिया में चीजें हो रही है, क्या ये चीजें जो बाहर की दुनिया में हो रही है क्या वो परमानेंट है? क्या इससे सच में मेरी जान चले जाने वाली है, या इट्स जस्ट अ टेम्पररी रफ फेज विच विल पास थ्रू विथ अ लिटिल परसिवियरेंस एंड पेशेंस, राइट? एंड आई वुड से कि in 90% of the cases it would be so कि it's a temporary thing. No matter how big it looks in that moment, it's a temporary thing and it will pass. Unless and until you are in some deep shit, then it's a different case. But again, then also killing yourself, it is not the answer. And the third thing one can do is go talk to a trusted friend or any person in your life who you trust. Ego को side में रखो, because whatever negative is happening here, it is much important to attend to it than satisfy your ego. कि मैं किसी से बात नहीं करता, I don't want to be vulnerable in front of anyone to show them my true nature. What is happening? What is the mess that is happening here? And that's a very, 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 very wrong mentality to have. एक famous कहावत है कि happiness gets double when you share
and sorrow gets half when you share. So when something is bothering you, please go and talk to someone. And it's a very, very helpful tool which not many people are like really open to do in their life. So please go and talk to anyone you trust. It will really help, trust me. And the fourth point is for the ones जिसके पास लोग बात करने आते हैं. जस्ट सोचो, अगर आपके पास कोई अपने प्रॉब्लम्स लेकर आए तो अच्छा लगता है ना, एक ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है. यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम वाइज इनफ, दैट आई एम स्मार्ट इनफ कि कोई मेरे पास आ रहा है सोल्यूशन के लिए. तो पहले तो इस बात को समझो, वो आपके पास आ रहे हैं आपका ईगो सेटिस्फाई करने नहीं, बिकॉज समवन इज इन डिस्ट्रेस. सो ऑल यू नीड टू डू इज लिसन टू देम, जस्ट लिसन टू देम. सीधा एडवाइस देने मत भागो, हमारी आदत है ये. कोई कुछ भी बोलता है, आइदर हम जज कर लेते कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करते, या फिर सीधा एडवाइस देते हम लोग, क्योंकि एडवाइस देने में बहुत बड़ा ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट. सो ये मत करना. जब भी कोई आ रहा है आपके पास, उसको सुनो. समटाइम्स ऑल समवन नीड्स इज समबडी टू लिसन. जस्ट कोई सुने उसकी बात विदाउट judging them, without telling them what to do, because every human being is smart enough in a way जिसको पता है कि eventually उनको क्या करना है. But in that moment all they need is somebody to listen to. And if somebody comes to you, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में मत लगना, जस्ट उसको सुनो. एंड अगर कोई एडवाइस देनी भी है तो एज अ कंप्लीट थर्ड पर्सन देना. कोई साइड्स मत लेना कभी. कोई साइड्स मत लेना मतलब क्या, ये अच्छा है, ये तो बुरा ही है, ये तो ऐसा ही करेगा, ये तो ऐसा ही है, ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, क्योंकि इससे उस जो पर्सन आपके पास आया है उसके माइंड में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और बढ़ेगी. ऐसा मत करो. अगर कुछ एडवाइस देना है तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दो उसको, उसको दोनों साइड दिखाओ. इन शॉर्ट उसको रियलिटी दिखाने की अगर समझ है आप में, तभी जाके अपना मुंह खोलना, वरना सिर्फ अपना कान खुला रखो, दिल खुला रखो. बी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम एंड जस्ट लिसन टू देम, दैट्स इट. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज if the negativity, the stress, the anxiety, the depression which you are under, if it does not go away for a certain period of time and you feel that it's not going away and that it is increasing, please go to a professional. उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. हमारे देश में खास करके जिसको भी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, हम कहते हैं पागल है ये तो, दिमाग खराब हो गया इसका, एंड सीधा उसको एक ढांचे में डाल देते हैं एंड वी स्टार्ट जजिंग हिम लाइक हॉरेंडसली. एंड इसकी वजह से लोग डरते हैं हेल्प सीख करने से पहले, एंड दैट इज अ फेलियर ऑन आवर पार्ट. हेल्थ इज हेल्थ. फिजिकल, मेंटल ये सेकेंडरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ में हम सेपरेशन ना लाए, लाइक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ नहीं. हेल्थ मतलब फिजिकली भी फिट जो है और मेंटली भी जो फिट है, जो दोनों एस्पेक्ट्स में ठीक है, वही पर्सन इन द रियल टर्म्स इज हेल्दी. सो हेल्थ को बाइफोकेट मत करो. जैसे अगर फिजिकली हमारी तबीयत खराब होती है, चाहे कुछ भी हो, तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचते एक भी बार अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अगर इमोशनल लेवल पे कुछ गड़बड़ है, तो हम क्यों इतना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. चलो अगर लोग कहते भी है तो कहने दो ना, तुमने किसके बाप का कर्जा देना है. वो जो कह रहे हैं उनका तो काम है कहने का, वो तुम्हें थोड़ी ना हेल्प करने आने वाले. उनको तो मजा आता है तो मजा लेने दो. उसमें आपको क्या एग्जिस्टेंशियल लेवल पे क्या फर्क पड़ता है. डू यू वांट टू गेट बेटर और नो? इफ यू वांट टू गेट बेटर देन इन लोगों की बातें नहीं सुननी है, इनको भौंकने दो. गली में जब कुत्ते भौंकते हैं ना, बहुत आवाज करते हैं, लेकिन कोई ध्यान देता है उनको? नहीं देता ध्यान. ये जो आसपास में जो लोग क्या कहेंगे वाले जो लोग है ना, वो ये गली के कुत्ते से भी बदतर है. भौंकने दो उनको, मत सुनो उनकी, बिकॉज यहाँ पे जो हो रहा है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जो फिजिकल हेल्थ के लेवल पे होता है. ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोचना कि मेंटल हेल्थ is something to be ashamed of. It is something that one needs to address it head on, just like you address any other issue. And the sixth point is meditation.
बिकॉज एक बार अंदर थोड़ी स्टिलनेस आ गई, एक बार अंदर थोड़ी शांति आ गई, एक बार अंदर आप देखो, एक बार आप समझ जाओ कि हाउ द वर्ल्ड विद इन वर्क्स, हाउ द माइंड वर्क्स, हाउ द इमोशंस फंक्शन. एक बार समझ में आ गया, एक बार समझ गए, दैट मीन्स हो गया काम. बट दिस इज अ टॉपिक विच आई विल मेक अ वीडियो ऑन अलग से, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो 1-2 मिनट में टच करके छोड़ सकते हैं इसको. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस. सो ये जो मैंने 6 पॉइंट्स बताए, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, एंड जिसको जरूरत है उसके साथ आप शेयर कीजिए. एंड इफ समबडी वांट्स टू शेयर वॉट एवर इज हैपनिंग हियर on the level of their emotions, you guys are always welcome to come to me. And yes, thank you so much for watching this video, and yeah, thank you.